Hello everyone, how are you? So today we are going to discuss the class 9 remaining portion of biology, of the chapter fundamental unit of life cell. In our previous videos we have discussed about nucleus, cell wall, plasma membrane, okay, and about some one or two cell organelles also. So today we will do the endoplasmic reticulum. This endoplasmic reticulum appears like this. Endoplasmic reticulum is a kind of cell organelle, and this is membranous cell organelle. What is the meaning of membranous? Membranous means bounded by membrane bound किया हुआ रहता है. नॉन मेम्ब्रेन नहीं होता है, इसमें membranous होता है. It is bounded by membrane, and this is the view of the endoplasmic reticulum. This endoplasmic reticulum remains attached with the outer nuclear membrane. This is nucleus that we have seen in the nucleus topic also. We have discussed न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, न्यूक्लियर का जो बाहर का आउटर मेम्ब्रेन होता है उससे ये अटैच रहता है, दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड दिस लुक्स लाइक एन एक्सटेंसिव नेटवर्क, मतलब बहुत नेटवर्क की तरह बहुत रहता है. दिस लुक्स लाइक एन एक्सटेंसिव नेटवर्क. नाउ दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम occurs in two types. दो टाइप का होता है. one is RER means rough endoplasmic reticulum, another one is SER means smooth endoplasmic reticulum. Now this RER, rough endoplasmic reticulum, is called rough because it appears rough in structure. ये rough होता है, rough in structure. Why is it rough now? It is rough because of the presence of ribosomes on its surface. This is endoplasmic reticulum. यहाँ पर क्या रहता है, endoplasmic reticulum पर राइबोसोम बहुत सारा अटैच किया हुआ रहता है. Many ribosomes remain attached on the surface of this endoplasmic reticulum. ऐसे यहाँ पर बहुत सारा ribosomes अटैच रहता है, यहाँ पर भी. And due to the presence of these ribosomes on the surface, now this appears, ये अब कैसे दिख रहा है, ये rough दिख रहा है. It is not smooth now, it is rough in nature. ऐसे if we can touch it, then it will appear rough, and so it is known as rough endoplasmic reticulum due to presence of, why it is rough, due to presence of ribosomes on the surface. ribosomes attach रहता है, इसलिए ये rough लगता है दिखने में. Now ये जो ribosome वाला है endoplasmic reticulum, this will be known as rough endoplasmic reticulum. And these two endoplasmic reticulum, these two network, ये जो दो है, this does not have any ribosome on the surface. यहाँ पर ribosome नहीं है, इसलिए ये smooth लगेगा दिखने में, and so it is called smooth endoplasmic reticulum. Now rough endoplasmic reticulum पर क्या है, there is ribosomes. So ribosome का function क्या है? Ribosome, we have discussed, the function of ribosome is protein synthesis. So rough endoplasmic reticulum क्या करेगा? Rough endoplasmic reticulum will synthesize protein with the help of ribosomes attached on the surface. ये rough endoplasmic reticulum protein synthesis करेगा. Now smooth endoplasmic reticulum का ऊपर में surface में तो कोई ribosome नहीं है, so it will appear smooth in structure or appearance. It will appear smooth due to absence of ribosomes. It does not have any ribosome नहीं है, so it will not do protein synthesis. And what function it will do? It will do the function of secretion of lipids. Lipid synthesize करेगा. What does lipid mean? Lipid mean fats and oils. So this smooth endoplasmic reticulum will synthesize lipids, that is fats and oils. Now this endoplasmic reticulum occurs in three form में पाया जाता है. One is like this one, flat sac like structure. ये flat जो दिखता है, flat and having closed, they are closed, CLOSED, closed मतलब ये closed है और flat है. इसके ऊपर में फिर क्या रहता है, there are attached many ribosomes are found attached on the surface. Okay, here these are the ribosomes that are found attached on the surface. So these ribosomes have this endoplasmic reticulum. This type of endoplasmic reticulum has ribosomes attached on the surface. यहाँ पर surface में ribosomes attach करके
रखा हुआ रहता है. And so they synthesize protein, cisternae. These type of endoplasmic reticulum, this type of form of endoplasmic reticulum को हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टर्नी बोलते हैं. ठीक है. सिस्टर्नी आर फ्लैट क्लॉस्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर, SAC, क्लॉस सैक लाइक स्ट्रक्चर, मतलब कि बैग लाइक स्ट्रक्चर है. फ्लैट होता है और फिर क्लॉस्ड भी होता है. इसके ऊपर में क्या रहता है? बहुत सारा राइबोसोम अटैच रहता है. And so it synthesizes protein with the help of ribosomes. Now there are another spherical shape. Spherical shape वाला जो form है, spherical shape और we can say oval shape also. ये जो spherical shape वाला और oval shape वाला जो form है endoplasmic reticulum का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? Vesicles बोलते हैं. Now they do not have any ribosome. यहाँ पर ribosome नहीं है. No ribosomes. So what function they will do? They will not synthesize protein, they will synthesize lipids. जैसे यहाँ पर स्मूथ एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम में हुआ था, वैसे ही जस्ट यहाँ पर भी हो रहा है. They do not have ribosome on the surface, so they synthesize lipid synthesize करता है. There is another form, third form. This one appears as tube. मतलब ये tube elongated, ये elongated होता है. Elongated means long like structure, long tube like structure. ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं? Tubules बोलते हैं. What is their function? Their function is to transport. ये क्या function करता है? Transportation of proteins and lipids. जो यहाँ पर सिस्टर्नी और विसाइकल दोनों मिलकर के क्या सेक्रेट किया है, क्या सिंथेसाइज किया है? सिस्टर्नी हैव सिंथेसाइज प्रोटीन एंड विसाइकल हैव सिंथेसाइज लिपिड. नाउ ये प्रोटीन और लिपिड जो है यहाँ पर सिंथेसाइज हो चुका है इंडोप्लास्मिक रेटिकुलम में. इसको क्या करेगा अब ये इंडोप्लास्मिक रेटिकुलम? नाउ दिस इंडोप्लास्मिक रेटिकुलम विल डिस्ट्रीब्यूट दिस प्रोटीन एंड लिपिड टू द एंटायर साइटोप्लाज्म. पूरा साइटोप्लाज्म में क्या करेगा? डिस्ट्रीब्यूट करेगा. इट विल डिस्ट्रीब्यूट टू द एंटायर साइटोप्लाज्म. सो ये एंटायर साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या रहता है? देयर आर ट्यूब लाइक इंडोप्लास्मिक रेटिकुलम. अगेन दिस ट्यूब लाइक इंडोप्लास्मिक रेटिकुलम आर कॉल्ड tubules. So it is with the help of these tubules that the materials synthesized in the endoplasmic reticulum like protein, lipid, fat, cholesterol are transported to the cytoplasm. पूरा साइटोप्लाज्म में जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वो यही ट्यूबुल के सहारे किया जाता है. Now let us see their functions. First one, they synthesize lipid. Lipid synthesize करता है by the smooth endoplasmic reticulum. They also synthesize lipid मतलब क्या है? Fat and oil है. Fats, oils. They also synthesize cholesterol. Cholesterol भी synthesize करता है. And they also synthesize steroids. जो steroids होता है made up of proteins and these are type of hormones. ये hormones है. इससे क्या मिलता है? हम लोग को बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलता है, पावरफुल हो जाता है आदमी तुरंत. ये स्टीरॉयड हार्मोन जो है इसको भी कौन सिंथेसाइज करता है? लिपिड सिंथेसाइज करता है. नाउ इसको कौन सिंथेसाइज करता है? स्मूथ एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज करता है. नाउ एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम आल्सो सिंथेसाइज प्रोटीन बाय RER विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम्स. मतलब रफ एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम के जो ऊपर में राइबोसोम्स है वही राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसाइज करता है. नाउ द स्मूथ एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम ऑफ आवर लीवर सेल, जो हम लोग का अंदर में लीवर है, लीवर का सेल वो क्या करता है? डिटॉक्सिफिकेशन करता है. डिटॉक्सिफिकेशन मीन्स इट डिस्ट्रॉयज द क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन? डिस्ट्रॉयज टॉक्सिक सब्सटेंसेस दैट आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी दैट वी हैव कंज्यूम. जो हम लोग टॉक्सिक सब्सटेंस कंज्यूम कर लेते हैं उसको क्या करता है? डिटॉक्सिफिकेशन करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है. These toxic substances can be DDT. We can consume DDT accidentally. We can consume drugs जो हम लोग लेते हैं. एस्पिरिन जो मेडिसिन होता है, ड्रग होता है, वो जो लेते हैं. इंसेक्टिसाइड्स जो हम लोग खाते बाय मिस्टेक जो हम लोग कंज्यूम कर लेते हैं. इंसेक्टिसाइड्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड अदर पोल्यूटेंट्स. सो दिस liver cell, the liver cell of our body contains smooth endoplasmic reticulum which produces enzymes to detoxify these toxic substances. ये जितना भी सारा toxic substance है सबको detoxify करता है. Now endoplasmic reticulum is also responsible for membrane biogenesis. What is the meaning of membrane biogenesis? Bio means life
जेनेसिस मीन्स, जेनेसिस का मतलब क्या है? सिंथेसिस. सो द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हम लोग को सेल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसको जो सिंथेसाइज करता है उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस बोलते हैं. सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आल्सो हेल्प्स इन, also responsible for membrane biogenesis, that is synthesis of plasma membrane. Now smooth endoplasmic reticulum, one more function we can see here. Smooth endoplasmic reticulum is also responsible for the synthesis of ग्लाइकोलिपिड्स. जो ग्लाइकोलिपिड्स होता है, ग्लाइकोलिपिड्स को भी सिंथेसाइज करता है. फॉस्फोलिपिड्स भी मैन्युफैक्चर करता है. ओके, फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, and this is also responsible for other hydrolytic enzymes also. तो ये सब सारा जितना एंजाइम है, कितना सब्सटेंसेस है, ये सब कौन मैन्युफैक्चर करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैन्युफैक्चर करता है. Now another another topic, mitochondria. This mitochondria is very much important for our cell, not only from the exam point of view but also for our cell. हमारे सेल के लिए बहुत ही जरूरी है. If there is no mitochondria, then there will be not energy available in our body, in our cell. हम लोग का सेल में जो इतना एनर्जी जरूरी पड़ता है कोई भी फंक्शन करने के लिए, वो एनर्जी ही नहीं मिलेगा. एंड सो मिटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनर्जी हाउस और पावर हाउस ऑफ द सेल भी हम लोग बोलते हैं. पावर हाउस ऑफ द सेल. Why is it known as powerhouse of the cell? Because it releases energy by respiration. Respiration करके energy रखता है. We will see it later here in the function. Now let us see the structure. Mitochondria जो होता है, these are cylindrical shape or maybe rod shape or maybe spherical shape, varying in different organisms. मतलब हर ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिलिंड्रिकल शेप ही होगा या फिर रॉड शेप होगा और फिर स्फेरिकल शेप होगा. इट डिपेंड्स अपॉन द type of cell, the type of organism. So different organism may have different shapes of mitochondria. ठीक है, it may be cylindrical, may be rod shape, may be spherical also. Now this mitochondria is bounded by a double membrane. Double membrane होता है. We can see here this one, first one layer, another one here, another one membrane. So it has two membranes. Outer membrane जो होता है, this one outer membrane, this is porous. ये जो outer membrane होता है, this is porous in nature. Okay, this one is the outer membrane which is porous होता है. And the inner membrane जो है, this inner membrane, this one inner membrane, this inner membrane is folded inside many times. inner membrane जो होता है इसको बहुत ज़्यादा ही folded किया गया है, folding किया गया है inner membrane को. Here we can see the inner membrane is folded like this, here also. This fold, ये जो fold है ना, ये fold को हम लोग क्या बोलते हैं? These folds are known as, this fold are known as cristae, cristae, cristae. These folds are known as cristae. So inner membrane is folded and the folds are called cristae. Now why is it folded? यहाँ पर fold क्यों किया गया है? ये भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है. It is folded to form cristae so as to increase the surface area. क्यों ये फोल्ड किया गया है? ऐसा सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए किया गया है. सपोज दिस इज वन लाइन, एक यहाँ पर एक ये लाइन है, इसका सरफेस एरिया, फिर जाकर के ये इसको ही फोल्डेड ऐसे कर देते हैं, बहुत सारा फोल्डेड कर देते हैं, तो किसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली ये कर्व का ही, फोल्डेड का ही सरफेस एरिया ज़्यादा होगा. अगर सरफेस एरिया ज़्यादा है तब क्या होगा? देयर विल बी मोर साइट फॉर रेस्पिरेशन. इसका फंक्शन क्या है मिटोकॉन्ड्रिया का? दिस आर द साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन. यहाँ पर रेस्पिरेशन का जो रिएक्शन होता है ना, वो यहाँ पर ये जो फोल्डेड सरफेस है, ये सरफेस पे, ये जो देख रहे हैं सरफेस, ये सब सारा सरफेस पे क्या होता है? यहाँ पर रेस्पिरेशन रिएक्शन होता है. रेस्पिरेशन में क्या होता है? ग्लूकोज जो होता है C6H12O6, ग्लूकोज रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड इन मिटोकॉन्ड्रिया. यहाँ पर ये मिटोकॉन्ड्रिया का जो ये फोल्ड है, यहाँ पर ही क्या होता है? दिस गेट्स ब्रोकन डाउन इनटू, क्या में ब्रोकन डाउन होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर अलोंग विद द रिलीज ऑफ एनर्जी. तो ये रिएक्शन जो है, दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस हियर. ये जो सरफेस है, ये जो फोल्डिंग है, बहुत सारा क्रिस्टी जो है यहीं पर होता है.
सो अगर इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है तो ये रिएक्शन क्या होगा, बहुत ज़्यादा ही होगा. ओके, दैट इज वाई इट इज फोल्डेड टू इंक्रीज, क्या करने के लिए फोल्ड किया गया है, इंक्रीज द सरफेस एरिया. सरफेस एरिया क्या इंक्रीज होने से फिर क्या होगा, इफिशिएंट रेस्पिरेशन हो पाएगा, मतलब रेस्पिरेशन रेट जो है वो ज़्यादा हो पाएगा. नाउ द इंटीरियर केविटी जो है ये मिटोकॉन्ड्रिया का, दिस वन इंटीरियर केविटी, ये जो स्पेस है इज फिल्ड अप विथ ए जेल लाइक सब्सटेंस से फिल अप किया गया है. सो द इंटीरियर केविटी इज फिल्ड अप विथ ए जेल लाइक मैट्रिक्स एंड दिस जेल लाइक मैट्रिक्स is proteinaceous in nature, means that it is made up of proteinaceous gel like matrix, means that this interior cavity का जो अंदर में जेल है, this gel is made up of proteins. now this interior cavity, यहाँ पर जो ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में क्या रहता है, there are ribosomes, these dot are the ribosomes. Here we can see inside the matrix that there are ribosomes. So interior cavity contains, क्या रहता है, ribosomes रहता है इसमें. So ribosomes क्या करेगा, it will manufacture protein and it has also DNA molecule. The interior cavity has also DNA molecule. Here you can see this is the DNA chain है. So contains ribosome and DNA. ये राइबोसोम और डीएनए होने के कारण से क्या होता है, द मिटोकॉन्ड्रिया इज एबल टू सिंथेसाइज इट्स ऑन प्रोटीन. जैसे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपना प्रोटीन खुद सिंथेसाइज कर पाता है, वैसे ही मिटोकॉन्ड्रिया अपना प्रोटीन खुद मैन्युफैक्चर कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा राइबोसोम होने के कारण से. एंड दैट इज वाई दिस मिटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज सेमी ऑटोनोमस cell organelle. Why is mitochondria known as semi-autonomous cell organelle? Because mitochondria has ribosome है, and so it can synthesize its own protein. That is why it is known as semi-autonomous cell organelle. Now function क्या है, this mitochondria is responsible for respiration. यहाँ पर जो एक क्रिस्टी है, I have told this क्रिस्टी are the site of cellular respiration. respiration में ये रिएक्शन होता है and energy is released in the form of ATP मोलिक्यूल बनाता है मिटोकॉन्ड्रिया के अंदर में. ATP क्या है, दिस ATP stands for एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. तो ATP जो है, दिस ATP इज ए मोलिक्यूल, ये एक मोलिक्यूल होता है जो रेस्पिरेशन के बाद मैन्युफैक्चर होता है. ATP कैसे मैन्युफैक्चर होता है, यू विल लर्न इन हायर क्लास. इट रिएक्ट्स विथ ADP मतलब क्या है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट. D स्टैंड्स फॉर डाई, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट. और ये फॉस्फेट मोलिक्यूल मिटोकॉन्ड्रिया के अंदर में, ये दोनों मोलिक्यूल मिटोकॉन्ड्रिया के अंदर में ही पाया जाता है. जब रेस्पिरेशन होता है तब जाकर के क्या रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज होता है. हियर एनर्जी इज रिलीज. दिस एनर्जी इज यूज्ड हियर फॉर रिएक्टिंग ADP विथ फॉस्फेट मोलिक्यूल. एंड यहाँ पर डाइफॉस्फेट है, दिस इज डाइफॉस्फेट. इफ वन फॉस्फेट, अगेन ये डाइफॉस्फेट है, एक फॉस्फेट आकर के और मिल जाए तो क्या हो जाएगा, ट्राइफॉस्फेट हो जाएगा. एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हैज बीन फॉर्म. सो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोलते हैं. एंड दिस 1 ATP, एक ATP के अंदर में कितना एनर्जी रहता है, 1 ATP इज इक्वल टू 30.5 किलो जूल पर मोल ऑफ एनर्जी. इसमें इतना एनर्जी होता है, 30.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी रहता है. नाउ दिस ATP इज सिंथेसाइज इन द मिटोकॉन्ड्रिया में सिंथेसाइज होता है. एंड दिस ATP प्रोवाइड्स एनर्जी. सो मिटोकॉन्ड्रिया is also known as powerhouse of cell. Mitochondria is also known as kitchen of the cell. Okay, and mitochondria is also known as semi-autonomous cell organelle. Why? Because it can manufacture its own protein with the help of ribosomes. So this is all about the mitochondria. Now let us see about the plastid. These plastid are mostly the coloring pigments होता है. And these pigments, plastids, are found only in plant cells and is absent in animals. Plant में पाया जाता है and it is also found in some algae. Algae जो होता है small form of
plants, algae is a division of the plant kingdom and algae is also known as thellophyta. thellophyta इसको हम लोग बोलते हैं. इसके अंदर में रहता है और प्लांट के अंदर में रहता है, बट एनिमल्स डू नॉट पोजेस. नाउ प्लास्टिड ऑल्सो हैव देयर ऑन जीनोम. जीनोम का मतलब क्या है? दे ऑल्सो हैव देयर ऑन डीएनए प्लस राइबोसोम. जैसे कि मिटोकॉन्ड्रिया में था अपना खुद का डीएनए होता था, राइबोसोम होता था. दैट्स हाउ लाइक दैट प्लास्टिड ऑल्सो हैव देयर ऑन डीएनए एंड राइबोसोम. डीएनए और राइबोसोम दोनों होता है प्लास्टिड में. नाउ प्लास्टिड जो होता है ना, 3 टाइप्स का होता है. दे आर क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट. क्रोमोप्लास्ट आर द कलर्ड प्लास्टिड्स. ये कलरफुल प्लास्टिड होता है और ये क्या करता है? दे इम्पार्ट कलर टू द प्लांट पार्ट्स. इम्पार्ट कलर प्लांट में जो हम लोग देखते हैं, जैसे कि येलो कलर, रेड कलर, ऑरेंज कलर, जो फ्रूट में होता है, कोई लीफ भी येलो रंग का होता है, ऑरेंज रंग का होता है, वो सब सारा कलर जो होता है वो कौन प्रोवाइड करता है? दिस कलर आर प्रोवाइडेड बाय क्रोमोप्लास्ट ओनली. फॉर एग्जांपल इफ इट इज ऑरेंज कलर, अगर ऑरेंज कलर है, नाउ दिस क्रोमोप्लास्ट कंटेन सम पिगमेंट. इसके अंदर में क्या रहता है? पिगमेंट रहता है. पिगमेंट का मतलब क्या है? पिगमेंट इज नथिंग बट द कलरिंग मटेरियल, जो हम लोग डाई यूज करते हैं कलरिंग करने के लिए. ओके, लाइक दैट पिगमेंट्स आर द कलरिंग मटेरियल्स. सो क्रोमोप्लास्ट कंटेन पिगमेंट्स. फॉर एग्जांपल क्रोमोप्लास्ट में कंटेन कैरोटीन पिगमेंट. कैरोटीन पिगमेंट अगर है तो वो कौन सा कलर देगा? इट विल प्रोवाइड ऑरेंज कलर. इफ इट इज जानथोफिल देन इट विल गिव येलो कलर. तो हम लोग जहां पर देखते हैं कोई भी फ्रूट में अगर येलो है तो वो येलो क्यों है? इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ जानथोफिल पिगमेंट in chromoplast. If a plant is orange, then it is due to the presence of carotene pigment in chromoplast. If a plant is red, अगर red है तब उसमें कौन सा pigment है? It is due to the presence of fucoxanthin pigment. Okay, so these are the pigments present in chromoplast and they are responsible for giving the fruits, ripe fruits or the plant parts their color. Leucoplast जो होता है ये दूसरा टाइप है. These are the colorless plastid. These are the colorless plastid. Okay, इसका कोई कलर नहीं होता है and they are responsible for storage. Storage का फंक्शन करता है. Storage of protein, storage of fat, ये सब स्टोर करता है. And leucoplasts are of again 3 types. ये 3 types का होता है leucoplast जो है. One is amyloplast. Amyloplast जो है ये क्या करेगा? This amyloplast will store carbohydrate. Amyloplast जो है ये क्या स्टोर करेगा? Will store carbohydrate. ओके, एंड इलायोप्लास्ट जो होता है इलायोप्लास्ट दे स्टोर फैट्स. ओके, एंड अनदर वन एल्यूरोप्लास्ट दे स्टोर प्रोटीन्स. सो हैव यू सीन ए पोटैटो को कट कर देते हैं तो उसमें क्या दिखाया जाता है? उसमें कलरलेस पोटैटो दिखाया जाता है. उसमें कलरलेस होता है. वो जो पोटैटो का अंदर में जो दिखाई देता है वो क्या है? दैट इज द ल्यूकोप्लास्ट, दैट इज द कलरलेस प्लास्टिड. वो जो पोटैटो का अंदर में जितना भी कुछ दिखाई दे रहा है दैट इज ल्यूकोप्लास्ट. दैट पोटैटो स्टोर्स कार्बोहाइड्रेट उसके अंदर में बहुत ज़्यादा होता है. एंड सो दैट ल्यूकोप्लास्ट इन पोटैटो कंटेन्स एमाइलोप्लास्ट. Leucoplasts are the colorless plastid. ठीक है, their function is storage of protein, fat and carbohydrate. According to their material they store, they are classified into amyloplasts which store carbohydrate. अगर फैट स्टोर करता है तो इलायोप्लास्ट, अगर प्रोटीन स्टोर करता है तो एल्यूरोप्लास्ट उसको बोलेंगे. नाउ थर्ड वन इज द क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट होता है दिस आर ग्रीन कलर होता है एंड दे कंटेन ग्रीन कलर्ड पिगमेंट. सो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है? क्लोरोप्लास्ट, सपोज दिस इज क्लोरोप्लास्ट, ऐसा ही कुछ होता है. क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? कॉइन, जैसे हम लोग को जो 1 रुपी 2 रुपी कॉइन होता है वैसे ही कॉइन लाइक स्ट्रक्चर कुछ होता है. डिस्कॉइड सेक जिसको हम लोग बोलते हैं, कॉइन लाइक होता है. दिस कॉइन लाइक स्ट्रक्चर, ये जो एक है कॉइन लाइक, जैसे कि 5 रुपीज़ का कॉइन लेकर के हम लोग ऐसे एक सेक बना करके ऐसे स्टेक बना करके रख देंगे, वैसे ही क्या होता है इसके अंदर में स्ट्रक्चर पाया जाता है. तो ये जो एक कॉइन है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये सिंगल यूनिट जो है कॉइन, 1 कॉइन, 2nd कॉइन, 3rd कॉइन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड थाइलाकॉइड. एंड ये जो पूरा स्टेक है, दिस होल स्टेक इज नोन एज ग्रेनम.
और ग्रेना, ठीक है। दिस ग्रेना, ग्रेना के अंदर में क्या रहता है, दिस ग्रेना कंटेंस क्लोरोफिल, ग्रेना में क्लोरोफिल होता है। एंड दिस ग्रेना इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यहाँ पर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन होता है, फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस हियर, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन होता है। सो दिस ग्रेना इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। नाउ दिस ग्रेना आर द फंक्शनल यूनिट, ये इसको फंक्शनल यूनिट ऑफ क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ही क्या रहता है, क्लोरोफिल रहता है ग्रेना में, और क्लोरोफिल ही से क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। नाउ स्ट्रोमा इज द मैट्रिक्स जेल दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट, इसके अंदर में जो जेल है, ये जो मैट्रिक्स है, इसको हम लोग फ्लूइड जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। और इसके फ्लूइड में क्या क्या रहता है, फ्लूइड में राइबोसोम्स होता है, राइबोसोम्स, एंजाइम्स होगा, स्टार्च होगा, these all substances are present inside the chloroplast. So up to this for today. Have a goodbye. Please like, share and subscribe the channel and stay updated. Share your doubts in the comment section. Thank you.